All right, good evening, guys. So I think everyone, in fact, most of the students has have joined in. So let's begin today's discussion. All right. Let me share the screen first. ठीक है. So I hope you guys have seen the video lectures that I requested you to see, and based on that, आप लोगों ने बुकलेट में से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं. Now I'll be going through those doubts one by one, but उसके पहले quick discussion on the conceptual doubts or concepts that we have in the chapter. Now, all right, so let's start the discussion. I'll give you the basic subtopics that are there in the chapter. Guys, please refrain from this chat. Matlab, otherwise I'll have to. Okay, let me do this thing. Sir, could you please explain the working of a gas ion electrode? Okay. So if you have anything to put on the group chat, then just send me across. I have disabled chat between participants. Now, as a quick overview of the two lectures and the concepts that you have learned, I'll start with the first subheading or subtopic that you discussed. Okay, just a second. Yeah, I will take the doubts one by one. एक बार hold करो for the respective subtopic. Okay, so let me just quickly take an overview of the subtopics that were there, and then step by step आप लोग मुझे उसमें से फिर बताना कहाँ कहाँ पे doubts आए हैं. So the first topic was construction and working of galvanic cells. You are my fire, the one desire to leave. I want. All right. So पहला subtopic was construction and working of galvanic cell. Then the next subtopic was types of electrodes which were present. Then based on the types of electrodes, उसके बाद में representation of cell was something that we discussed. Then उसके बाद में I think the next important concept that was discussed was
electrode potential. Electrode potential and cell potential. Then the next topic was reference electrode. Then electrochemical series. And lastly, it was thermodynamics. All right. So now in all these subtopics, मैं एक बार quickly go through करके आपको बता देता हूँ what were the key expectations from our side. आप लोगों से क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, आपको क्या क्या पता होना चाहिए. सो फर्स्ट थिंग वाज कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल. तो इसमें after studying through the video lectures, after solving the questions in the booklet, now you should be in a position to answer a variety of questions regarding the working of galvanic cell. Anode positive होता है कि negative होता है, what is the polarity of cathode, where does oxidation and reduction take place, then in what direction electrons flow in the external part of the cell, like एनोड से कैथोड जाते हैं कि कैथोड से एनोड आते हैं. इंटरनल पार्ट ऑफ सेल में करंट इज कैरिड बाय आयंस और इलेक्ट्रॉन्स. देन सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शनैलिटीज क्या क्या होते हैं, अनायन सॉल्ट ब्रिज से किस डायरेक्शन में जाते हैं, कैटायंस किस डायरेक्शन में जाते हैं. सो ऑल दीज डिफरेंट पॉइंट्स व्हिच कम, they are related to particularly the working of galvanic cell itself. So how galvanic cells work and the detailed aspects about them, that is something which is an expectation कि अब आपको पता होना चाहिए. Now one important part about this is that आपके लिए ही एक better learning रहेगा if you try to solve this or try to remember this by discussing with each other. So this is something which I have observed is an important method, especially for subtopics like this, जहाँ पर छोटे-छोटे clarification बहुत ज़्यादा matter करते हैं. So it will be much better if you guys can partner with each other, like you have a friend or two in the batch, तो आप उनके साथ में ये galvanic cell का working, ठीक है, ये दो subtopic जो है, तो galvanic cell का working and this electrochemical series, इन दो subtopics के लिए बैक टू बैक क्रॉस क्वेश्चन करो, एक दूसरे को समझाओ कि क्या होता है ये एंड हाउ डू वी डिफाइन इट, हाउ इज इट डिजाइंड, एंड दैट इज वेयर देन अ लॉट ऑफ यू विल बी एबल टू रियली. Why are you gay? Why are you gay? This is something which we will be able to understand better. Okay, so till this time I was being polite with you guys, and if we have certain idiots like these coming into the class, then I have no option but to force mute all of you. So for students who want to discuss doubts, आप chat पे बोलो, chat पे we will discuss. Otherwise there are these notorious students who are present in. All right. We will come to the doubts, don't worry, one by one.
No. So galvanic cells का construction and working ये आपको समझ में आया. Then types of electrodes. इसमें आपसे क्या क्या एक्सपेक्टेशन है ये अब आप एक एक करके समझना. सो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स के अंदर अच्छा सो लेट मी टॉक अबाउट कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल में. अच्छा इस पे इस सब टॉपिक में आपको कोई डाउट है पर्टिकुलरली इन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पार्ट ऑफ द गैल्वेनिक सेल? मैं गैस आयन इलेक्ट्रोड का मतलब समझाऊंगा. Wait. Okay. So there is one student who Sai has a doubt regarding the functions of salt bridge. So this is something I think I explained in the last class as well. That we would want the salt bridge to help maintain the electrical neutrality of solution. So if you remember, it will help us complete the circuit as well as maintain electrical neutrality. So there was zinc electrode and zinc 2 plus ions. There was copper electrode and copper 2 plus ions. And in the external part, there were electrons going from the zinc side to the copper side. But in the internal part, we had nothing to complete the circuit, and that is where the salt bridge came in. So salt bridge helped, it had multiple functionalities. It completed the circuit. Then another thing it helped with was maintain solutions neutral. So if you remember that the zinc compartment, this became positively charged. So the anions from the salt bridge flow into the zinc compartment, and cations from the salt bridge flow into the cathode compartment. So these were some things which were related to the functionality of salt bridge. Now, okay, so this is something which talks about, okay, next doubt is about liquid-liquid junction potential. So liquid-liquid junction potential के बारे में what we have as an understanding is जब instead of salt bridge you use this thing, if you use a semi-permeable membrane. Okay, so this was something which I again explained in the last class also, that instead of salt bridge, if you use a semi-permeable membrane across which ions can flow, so यहाँ पर भी चार्ज का accumulation होता है and उसकी वजह से एक electrical charge layer बन जाएगी. ठीक है, there can be positive and negative charges accumulated on either side depending upon how the ions are flowing, and this creates a liquid-liquid junction. As you can see, the words are there. Liquid-liquid के junction पर there is a potential that is created. This is not something which is helpful for the cell. No, so okay, there is a question that is being asked that does salt bridge completely eliminate liquid-liquid junction potential? No, it minimizes it. It is not something that can completely eliminate. Okay. Okay, so now let's move on to the next subtopic, types of electrodes. अब types of electrodes में आपसे expectation है that you are able to understand the construction, what are the types of electrodes that are there, and the reactions that are happening in them. So you are able to understand what kind of reactions happen when we are
taking different types of electrodes. So इसमें सबसे simple metal ion electrode तो आप लोगों को पता ही है. जैसे let me take the example of a gas ion electrode, how the construction is and how the reactions happen in the gas ion electrode. So in gas ion electrode you have a solution and the solution contains the ion wala part, and then there is a provision to blow in the gas in this solution. Now the thing is that the reactions do not happen in a direct manner. So here we take help of an inert metal. ठीक है, typically platinum use करते हैं. इसके भी दो benefits होते हैं. It provides the surface जहाँ पर gas और ion के बीच में reaction होगा, and it also helps with conduction of electrons. So ये इसका construction था. ठीक है, pretty simple straightforward construction was there, and based on this अब आपसे पूछा जा सकता है कि reactions इसके आप लिख के बताओ. So you should be clear कि इसमें आपको reactions कैसे लिखने हैं. So for example say hydrogen gas and hydrogen ion है, तो उस केस में reactions कैसे होंगे cathode और anode के. Cathode के केस में you will have the following happening. So you will have H2 or not, in fact H2 gas, इसमें reduction होगा. So 2H plus 2 electron is going to give you H2 gas, and anode will be exactly opposite of it. H2 gas is going to give you 2H plus 2 electron. Then anode par okay, so this was this example. Say you have this combination of Cl2 and Cl minus. ठीक है, you have Cl2 and Cl minus. तो इस केस में भी अभी you have to be cautiously writing how the reaction at cathode and anode would be. ठीक है, cathode पे reduction होता है, anode पे oxidation होता है. जैसे आपने यहाँ पे observe किया, cathode पर reduction हुआ in case of H plus became from +1 to 0, एंड एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ. तो अब यहाँ पर भी आपको इसी चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा. सो Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू गिव यू 2 Cl माइनस आयन. ठीक है, इस केस में गैस से हमें आयन की तरफ जाना पड़ रहा है, एंड एनोड में जस्ट द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ इट. 2 Cl aqueous will give you Cl2 gas plus 2 electron. You will be going from -1 to 0. So this was gas ion electrode. Now after gas ion electrode, let me take some quick clarification over the metal insoluble salt electrode as well. And this is something which I will also contrast with the metal soluble salt. So on one side you have metal soluble salt electrode, say Ag metal है, and metal soluble salt से AgNO3, ये soluble salt है. So इस केस में simple construction कैसा रहेगा इसका? You will have Ag dipped in AgNO3 solution, right? And the reaction are also pretty straightforward. It is only the metal and the metal ion which participate in the reaction. So ये cathode पे रहेगा, and this will be the anode reaction, right? Cathode पर reduction रहेगा and anode पर oxidation रहेगा. But अगर यहीं पर मैं example ले रहा हूँ metal insoluble salt का, ठीक है, so metal insoluble salt का example notice करना. से Ag metal ले लिया और उसका insoluble salt है से AgCl. ठीक है, अब how to differentiate between soluble and insoluble salt? Now एक तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉलेज के ऊपर है, सॉल्ट्स की नॉलेज के ऊपर है. दूसरा आपको क्वेश्चंस में हिंट मिलेगा, मतलब सॉल्युबल सॉल्ट्स के आगे एक्वस लिखा होगा या फिर उनका कॉन्सेंट्रेशन मेंशन किया होगा, whereas insoluble salts के आगे ऐसे solid लिखा होगा. So that will be something which will be helpful for you to identify that whether the salt is soluble or insoluble. Now इसके कंस्ट्रक्शन में नोटिस करना, you have Ag का मेटल, देन उस पे कोटिंग रहेगा,
AgCl का जो भी आपका insoluble salt है उसका coating रहेगा, and this is then dipped in the solution of anion, ठीक है, solution of anion of salt, ठीक है. सो एग्जाम्पल, अब ये Cl माइनस का सोल्यूशन चाहिए तो KCl सॉल्ट डाल दिया, NaCl सॉल्ट डाल दिया, KCl सॉल्ट डाल दिया, तो ऐसा भी चलेगा. दिस इज द कंस्ट्रक्शन. अब यहाँ पर नोटिस करना, यहाँ पर एनोड और कैथोड के रिएक्शन डिफरेंट होते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव सीन दैट स्टूडेंट्स एक्चुअली फॉरगेट दीज रिएक्शंस, हाउ टू राइट द मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट के रिएक्शंस. These are very very important for you to remember. These are not the same as the previous one जो metal metal में हो रहा है, metal metal soluble में. These are different. So here we have Ag plus, not Ag, sorry यहाँ पे Ag plus आयन तो है ही नहीं, तो यहाँ पर AgCl, ठीक है, यहाँ पर मेरा सिल्वर +1 स्टेट में है. It gains 1 electron and goes to Ag solid plus Cl minus aqueous, ठीक है, जहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा. तो ये रिडक्शन रिएक्शन हो गया. और यही अगर एनोड की तरह बिहेव करेगा तो इसका ऑपोजिट रिएक्शन रहेगा. Ag solid plus Cl minus aqueous is going to give you AgCl solid plus electron, right? As you can see, Ag is going from 0 to +1. Is this clear with everyone? So इसमें से I think this is what I wanted to explain from my side when it comes to metal metal insoluble salt electrodes and these different type of electrodes. Now there are some questions which you guys are asking, so let me try to address those as well. So there is one question which is coming regarding use of AgCl coating in metal metal insoluble salt. So it is because it is a different electrode by design, ठीक है, ऐसा नहीं है कि it is the same electrode, this is a different electrode. यहाँ पर if I use a different salt तो रिएक्शन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इंस्टेड ऑफ यूजिंग AgCl, if I use AgBr, say silver bromide, then my reactions will change. जहाँ जहाँ पर क्लोरीन है उसकी जगह ब्रोमीन आ जाएगा एंड इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा. सो यू विल हैव इन फैक्ट यहाँ पर जो से E0 Ag plus Ag है एंड यहाँ पर AgBr Ag है, ये दोनों डिफरेंट रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, ठीक है. ये समझ में आया? ओके, गिव मी जस्ट 1 second गाइस. All right, so then there is another doubt that so reactions involving combination of soluble and insoluble salts are not possible. नहीं, so see, understand design के point of view से हमें ये नहीं चाहिए कि solution के अंदर ही reaction होने लग जाए, ठीक है. मतलब we want कि हमें ये नहीं चाहिए कि solution के अंदर redox reaction होने लग जाए, हमें चाहिए कि solution के अंदर half reaction हो, ठीक है, full reaction नहीं चाहिए हमें. तो हम लोग randomly कुछ भी substances को solution के अंदर नहीं डाल देंगे कि उनके अंदर ही रिएक्शन हो गया, फुल रिडॉक्स रिएक्शन उसी सॉल्यूशन के अंदर हो गया. We would want a half reaction occurring on one side and another half reaction occurring on the other side. That is why these types of electrodes are designed, जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है. Okay, then I think ये वाला part pretty much clear है. टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स कैसा है एंड इसमें एज आई हाईलाइटेड कि उनका कंस्ट्रक्शन और उनके रिएक्शंस आपको डेफिनेटली लिखने आने चाहिए. नाउ लेट्स मूव टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल. नाउ दिस इज समथिंग, वैसे तो उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी बुकलेट में हैं. इसमें द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू गाइज इज
that once you have a representation, तो आप टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड आइडेंटिफाई करके बता सकते हो. एंड अगेन जो भी इसका रिएक्शन हो रहा है हाफ सेल का एज वेल एज फुल सेल रिएक्शन, दैट इज समथिंग विच यू आर एबल टू टेल. ठीक है, दिस इज एन एक्सपेक्टेशन. सो बुकलेट में भी क्वेश्चंस हैं, एफबीएस के सेक्शन में आप लोगों ने नोटिस किया होगा that those questions are something which you can use to you know create or you can create equation cell reactions out of them and identify कि वो कौन सा टाइप का इलेक्ट्रोड है. इसमें अपार्ट फ्रॉम जो बुकलेट के क्वेश्चंस है वो मैं डिस्कस करूंगा. अपार्ट फ्रॉम इट, डू यू हैव एनी डाउट? सो लेट मी नो, आई विल क्विकली try to address that. You can send me over the chat if you have any particular doubt regarding that. Okay. Then comes the part of so यहाँ पर lecture 1 close हो गया था. Then lecture 2 comes in. Okay, कुछ doubt भेजा है. Let me just check. So okay, representation में how we write cathode and anode. So how we write as in आपके सामने जब भी कोई सेल का representation रहेगा तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लिखा रहेगा वो एनोड का रहेगा और राइट हैंड साइड में कैथोड का रहेगा. ठीक है, एंड द रिटन मैनर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, विद इन ईच कंपार्टमेंट. जैसे एनोड हाफ के बारे में आप बात कर रहे हो तो एनोड हाफ में अगर आपका आपको लेफ्ट टू राइट उसके कंपोनेंट्स लिखने हैं तो आप जिस वे में रिएक्शन हो रहा है उस वे में लिखते जाओगे. ऑक्सीडेशन हो रहा है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जाना है तो आप लेफ्ट टू राइट वैसे लिखोगे. कैथोड में रिडक्शन हो रहा है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड पहले लिखोगे और लोअर ऑक्सीडेशन का उसके राइट में. लेफ्ट टू राइट हाउ द रिएक्शन इज प्रोसीडिंग. ठीक है. Then another question that is asked is, in redox electrode the reaction happens in a solution, right? That is absolutely right. And then does the inert electrode is for the transfer of electrons? Yes, मतलब that is the purpose of the inert electrode there, कि अगर electrons लेके जाने हैं या electrons लाके देने हैं तो that is what the inert electrode is there for. ठीक है, ऑल राइट. सो देन नाउ सी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मैं डिस्कस करूंगा डाउट जब मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे आऊंगा. अभी वेट, अभी मैं वहां पे आया नहीं हूँ. अभी आई एम करंटली एट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है, देन आई विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एज वेल. Now coming to the, okay, so there is one more doubt. If by chance there is charge accumulation in the cell, then how would you prefer to remove it? Charge accumulation where? मतलब the way we are designing the cell, we are trying to ensure that charge accumulation नहीं हो. नहीं तो वो तो डिजाइन का फ्लॉ हो गया ना, फिर आप उस डिजाइन को रेक्टिफाई करोगे. सो इफ देयर इज एनी डिजाइन फ्लॉ देन यू ट्राई टू वर्क ऑन दैट डिजाइन फ्लॉ ओनली, अगर किसी डिजाइन की वजह से हुआ तो. ओके, देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का. ठीक है, सो लेट मी एक्सप्लेन दिस. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे भी कपल ऑफ डाउट्स आर देयर, सो लेट मी वर्क ऑन दैट. All right, so let me explain this electrode potential वाला part. So इसी के साथ में मैं आपको रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी समझा दूंगा, तो ध्यान से सुनना यहाँ पर.
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के केस में द थिंग दैट वी आर ऑब्जर्विंग इज कि लेट्स से यू हैव अ मेटल, ठीक है, एंड इट इज in its aqueous ions का solution, ठीक है. So what we see is that there is an equilibrium that gets established between the metal and its ions. Now depending upon the kind of substance there is, we can have potential difference created in the following manner. It can be something जहां पर say positive charge solution में है and negative charge is present on the electrode, or we could have something like this जहां पर metal rod के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एंड जो सोल्यूशन है दैट हैज गॉट नेगेटिव चार्ज, ठीक है. नाउ दिस इज समथिंग व्हिच डिपेंड्स फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, सब्सटेंस टू सब्सटेंस, हाउ इट वुड बी. फॉर नाउ आपके लिए जो अभी इसमें ध्यान देने लायक पॉइंट है इज दैट देयर इज एन electrical double layer that gets created, ठीक है. Opposite charges are at some distance from each other. That is what is called as electrical double layer, and because of this there is a potential difference that is created, जिसको हम लोग हाफ सेल पोटेंशियल कहते हैं. अब ध्यान से नोटिस करना यहाँ पर, we can't measure this half cell potential, ठीक है, in an absolute manner, ठीक है, because absolute manner में measure करने के लिए I have to ensure that there is a complete circuit that occurs. मतलब so एक तरीका कैसा होता है, आप से कोई डिवाइस ले लोगे, वोल्टामीटर, आप पोटेंशियल डिफरेंस यूज करने के लिए वो डिवाइस यूज करते हो, एंड व्हाट यू डू इज देन यू कीप वन एंड ऑफ इट कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रोड एंड अदर एंड ऑफ इट इन द सोल्यूशन. सो यहाँ से आपके लिए अब कोई रीडिंग नहीं आने वाली है, ठीक है, बिकॉज द थिंग इज दैट दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ कंप्लीट सर्किट, दिस इज नॉट गोइंग टू यील्ड a flow of electrons through it जिससे आप measurement ले सको. So this kind of fails. You are not able to measure the potential difference of a half cell. Okay, what we can measure, okay, we can measure full cell का potential difference, ठीक है. Okay, so I have a question here which is saying that no, it is not about voltmeter या bulb. आप कुछ भी लगा दो वहां पर. So I am getting a question कि वो voltmeter की जगह bulb लगा दो. नहीं होगा बाबा, अभी वो सर्किट ही कंप्लीट नहीं है, उसके थ्रू करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है, तो आपके लिए वहां पे ना वोल्टमीटर चलेगा ना बल्ब चलेगा, ठीक है. So we can measure full cell potential though, ठीक है, नोटिस करना, we can measure full cell potential because by the virtue of the design of the full cell we know that electrons flow in the external part. So if you remember this full cell का design, zinc zinc ions के solution में dipped है and copper ions के solution में dipped है, and you have the electrons going. So यहाँ पर because this circuit is complete, ठीक है, salt bridge and all ये सब अपनी place में है, तो आप full cell का potential difference जरूर measure कर सकते हो, ठीक है. You can get the full cell का potential difference. So now observe करना,
this is electron source and this is electron sink. It wants to give the electrons, right? So यहाँ पर oxidation हो रहा है, यहाँ पर reduction हो रहा है. तो अगर इसका oxidation potential मिल जाए और इसका reduction potential मिल जाए, ठीक है, एनोड का ऑक्सीडेशन एंड कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, सो दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल. ठीक है, सो एज आई सेड दैट दिस इज समथिंग व्हिच कैन बी एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड. सो अब हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा अननोन इलेक्ट्रोड है, अगर हमारे पास में कोई अननोन हाफ सेल है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करना रहता है, सो हाउ डू वी वर्क विद इट, दैट इज समथिंग, लेट मी एक्सप्लेन दैट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड. ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पर्पस कैसा है. सो लेट्स से देयर इज दिस अननोन हाफ सेल एंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. ठीक है, इस अननोन को भी ट्राई टू टेक अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ओनली. इनको मैंने आपस में कंबाइन कर दिया और एक फुल सेल बना दिया. ठीक है, अब स्टार्टिंग में मुझे ये नहीं पता होगा कि कौन सा एनोड की तरह बिहेव करेगा, कौन सा कैथोड की तरह बिहेव करेगा. दैट इज नॉट समथिंग विच आई नो अप फ्रंट. ठीक है, मुझे बट जैसे ही ये सेल में कनेक्ट करूंगा तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. ठीक है, एक हो सकता है दैट यू नो द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज कैथोड एंड द अननोन इज एनोड. ये मुझे कैसे पता पड़ेगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट से. ठीक है, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, दैट इज समथिंग व्हिच आई कैन एक्सपेरिमेंटली गेट एंड गेट अ सेंस ऑफ व्हिच इज कैथोड एंड व्हिच इज एनोड. एंड दूसरी पॉसिबिलिटी है कि SHE एनोड की तरह बिहेव कर रहा है एंड अननोन कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है. ठीक है, सो बोथ दीज पॉसिबिलिटीज आर देयर एंड इट्स नॉट रियली अ प्रॉब्लम वर्किंग विद दिस पॉसिबिलिटी. अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना सेल का मेजरमेंट ले लेंगे. ई नॉट सेल, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, ई नॉट, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड. Now, because you would have seen in the video lectures that oxidation and reduction potential of any half cell are opposite of each other. So I can write for anode, I can replace the oxidation potential with reduction potential and put a negative sign here. ठीक है, the reason why I have done this, ये भी मैंने आपको video lectures में explain किया हुआ है, that we primarily want to deal with reduction potentials only. उसी का data extensively मिलता है, तो हम काइंड ऑफ उसी के ऊपर अपने फॉर्मूलाज डिजाइन कर रहे हैं. सो यू गेट द फॉर्मूला दैट ई नॉट सेल इज इक्वल टू SRP कैथोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड, माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एनोड. ठीक है, अब इस केस में ऑब्जर्व करना आप, इन दिस केस व्हाट विल हैपन, ई नॉट सेल ये हमें एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगा. अब यहाँ पर जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो कैथोड है, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग बाय कन्वेंशन 0 असाइन कर देते हैं. ठीक है, दिस इज समथिंग व्हिच इज बाय कन्वेंशन. जैसे हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में भी कुछ कन्वेंशन एस्टैब्लिश किए थे, तो वैसे यहाँ पर बिकॉज हम एब्सोल्यूट वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, सो व्हाट वी डू इज वी डिटरमाइन द और वी टेक सम रेफरेंस and put it equal to 0 and बाकी सब फिर उसके रेफरेंस में ही मेजर होता है. So यहाँ पर you will get SRP of the anode and as you can see यहाँ पे SRP anode comes out to be negative values. So ठीक है, तो अब आपने नोटिस करा होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में there are some examples जिनका SRP नेगेटिव है.
तो वो वैसे एग्जाम्पल्स होंगे जिनको अगर हम SHE के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो दे आर बिहेविंग एज एनोड। ये उनका पर्टिकुलर एग्जाम्पल का नेचर है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड का। इन दिस केस यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इन दिस केस व्हाट हैपेंस, यहाँ पर भी इफ आई नोटिस द एग्जाम्पल ई नॉट सेल विल बी SRP कैथोड, तो ये मेरा अननोन हो गया एंड एनोड इस केस में 0 होगा। ठीक है, ये मेरा SHE है, मैंने यहाँ पर ऊपर यहाँ पे नोटिस किया था कि SHE इज एनोड, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग अगेन 0 असाइन कर देते हैं। सो यहाँ पर यू कैन सी दैट द SRP ऑफ द कैथोड द अननोन is or are positive values. ठीक है, so this is something which we are able to understand after choosing the reference electrode. ठीक है, now as I can see आप लोगों के कुछ doubts आ रहे हैं, so let me open that. So okay, so we will talk about the electrochemical series in a short time. Wait. Now, after understanding this, okay, we have the reference electrode also now in front of us. तो हम electrochemical series पे आ जाते हैं, which is in continuation of this discussion itself. So what happens? अब हम ऐसे different unknown half cells का data collect करेंगे and उनको एक ascending या descending order में arrange कर देंगे, तो उससे electrochemical series बन जाएगी। ठीक है, now what are the important aspects from electrochemical series that you need to remember, वो मैं एक बार आपके सामने quickly discuss कर लेता हूँ। So यहाँ पर observe करना, electrochemical series में सबसे पहले तो क्या नहीं करना है, let me quickly talk about that. So don't try to remember data. ठीक है, don't try to remember all data. It is a futile exercise. ठीक है, एक दो डेटा इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे मैं आपको बताऊंगा ध्यान रखने के लिए। ठीक है, जब हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स वाला पार्ट देखेंगे जो कि सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर है, तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा डेटा बोलूंगा याद रखने के लिए, वो आप जरूर ध्यान रख देना। यू विल कम टू नो अबाउट इट लेटर। अभी के लिए डोंट ट्राई टू रिमेंबर डेटा एज सच। ठीक है, अब आपको क्या क्या याद रखना है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट तो पहले इसकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। ठीक है, एक बार एक क्विक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर डेवलप करना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। H++ इलेक्ट्रॉन गिविंग H2, ये हमारा रेफरेंस रहता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। ठीक है, दिस इज लाइक अ रेफरेंस वैल्यू जिसका SRP आप नोटिस करोगे तो 0 वोल्ट है, ये हमने बाय कन्वेंशन असाइन किया हुआ है। इसके ऊपर नोटिस करना SRP के पॉजिटिव वैल्यूज रहेंगे। ठीक है, एंड इसके नीचे नेगेटिव वैल्यूज रहेंगे। ठीक है, अब व्हाट डू दीज पॉजिटिव वैल्यूज मीन, ये जस्ट मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन करा कि जिनका SRP पॉजिटिव था वो अननोन कैथोड की तरह एक्ट कर रहे थे। ठीक है, सो लेट मी काइंड ऑफ रीराइट दैट स्टेटमेंट हियर दैट दीज इलेक्ट्रोड्स act as cathode. What do I mean by cathode? That they undergo reduction when connected to SHE. ठीक है, what about the negative values? तो इसमें कैसा रहेगा, these electrode act as anode. ठीक है, they undergo
oxidation when connected to SHE. So ये इनके इंपॉर्टेंट दो फीचर्स हैं. अच्छा, अब इसमें ये चीज नोटिस करना, मैं एक एक एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ जिससे आपको इनके बारे में थोड़ा सा और आइडिया लगेगा. सो नोटिस दिस. पहले नेगेटिव वैल्यूज वाले का एक एग्जाम्पल लेता हूँ. सो से दिस वाज द एग्जाम्पल Li प्लस aqueous प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग Li सॉलिड. ठीक है, इसका SRP कुछ -3.05 वोल्ट्स टाइप था. ठीक है. नाउ फॉर दिस एग्जाम्पल, अब आपके लिए नोटिस करना व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टेकअवेज. So one important takeaway is, as I said, that this wants to primarily undergo oxidation. मतलब ये reaction primarily इस backward direction में जाना चाहता है. ठीक है. So ये जो Li है, this wants to readily oxidize. So this implies this is a strong reducing agent. ठीक है. That is an important learning. नाउ साथ में नोटिस करना, अगर मुझे Li प्लस के बारे में कमेंट करना है तो इट विल बी अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन का फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का, ठीक है, रिडक्शन होने का टेंडेंसी बहुत कम है. ठीक है. इसका टेंडेंसी क्या है? प्राइमरीली टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, यानी कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आना चाहेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाना चाहेगा. एंड दिस इज समथिंग विच यू कैन कनेक्ट बैक टू द basic properties of metals as well. कि metals want to readily undergo oxidation, so they are strong reducing agents. ठीक है. और एक बार जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन बना देते हैं तो ये आयन तो क्या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर कर लेता है. अब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला आयन ये ज्यादा कुछ नहीं करना चाहेगा ना. so it really does not want to kind of accept electron. So it's a weak oxidizing agent in that sense. ठीक है. Similarly, एक बार ऑब्जर्व करना ऊपर वाला पार्ट. ठीक है. Similarly, let's observe some positive example. तो इसमें मैं एक और नॉन एग्जाम्पल लेता हूँ F2 का. ठीक है. F2 gas plus 2 electron is giving 2F minus aqueous. ठीक है. इसका भी पॉजिटिव SRP रहता है. ठीक है. आई थिंक प्लस 2.87 आई थिंक रहता है. आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डेटा, बट ठीक है, समथिंग ऑफ दैट नेचर. तो अब इसके लिए नोटिस करना दैट दिस साइड वांट्स टू प्राइमरीली अंडरगो रिडक्शन, यानी कि ये प्राइमरीली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाह रहा है. यानी कि दिस स्पीशीज, ठीक है, दिस स्पीशीज इट वांट्स टू एक्ट एज, or it want to readily, I should say, readily reduces. If it readily reduces, then what does it means? That it's a strong oxidizing agent. Okay, it readily wants to undergo reduction reaction. Now if you look at F minus, so F minus के केस में कैसा रहेगा? F minus, अब ये तो क्या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ गया है ना. F2 as a non-metal has accepted electrons, तो अभी F minus कुछ खास करना नहीं चाहेगा, तो it is a weak reducing agent. ठीक है. ये रिएक्शन जैसे मैंने आपको बताया, it wants to undergo reduction, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहता है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाना चाहेगा, मतलब बहुत कम टेंडेंसी होगा इसका. So this is how you can understand one important aspect about the electrochemical series. ठीक है. कि कौन से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है. ठीक है. एक तो ये रीड करने के लिए आपको जरूरी है. दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, अनदर पॉइंट इज दैट हम लोगों को कौन सा डेटा काइंड ऑफ याद करना है. ठीक है. So this is something which is also a question that many a time comes.
So let me kind of highlight it over here itself. So let me put the electrochemical series and okay, now check it out. Let me increase the size of this. ठीक है, सो जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ पर इन दिस, ये एनसीईआरटी से उठाया गया है. सो वही चीज़ बुकलेट में भी मेंशन्ड है. अब इसमें कौन से आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे. एक तो मैंने आपको बताया ये H+ वाला, दिस इज आवर रेफरेंस विच इज ऑफ 0 पोटेंशियल डिफरेंस. देन उसके ऊपर ये पॉजिटिव वैल्यूज है, नीचे वाली नेगेटिव वैल्यूज है. ठीक है, दीज आर प्राइमरीली मेटल्स एंड ऊपर वाले आर प्रेडोमिनेंटली नॉन मेटल्स. ठीक है, you will find some metals also there, but that is something which is a tendency of the substance. Now observe यहाँ पर, अब इसमें से आप क्या क्या ध्यान रखोगे. सो मेटल्स में अगर बात करूं मैं, सो पॉजिटिव में आप देखोगे कि गोल्ड का ऊपर है. ठीक है, देन Hg का is something which you should remember. देन Ag का एंड कॉपर का. ठीक है, कॉपर 2+ का, कॉपर 2+ गोइंग टू कॉपर. ये आप कुछ केसेस, आप रिलेटिव ऑर्डर ध्यान रखोगे कौन सा ऊपर नीचे है. ठीक है, डेटा का आपको कोई याद नहीं रखना है, बस ऊपर नीचे कौन सा है. एंड देन नीचे बिलो हाइड्रोजन Pb, Sn, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये तो खैर अपने आप याद हो जाते हैं. दीज आर elements which are quite reactive, metals which are quite reactive. Then non metals में फोकस करना. अभी नॉन मेटल्स में हाइड्रोजन के ऊपर आप लोग क्या क्या ध्यान रख सकते हो. आयोडीन का ध्यान रखना. ठीक है, आयोडीन का, ब्रोमीन का, क्लोरीन का एंड फ्लोरीन का, इनका रिलेटिव ऑर्डर भी आप ध्यान रख सकते हो. दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज क्रूशियल. अच्छा, इसमें अब 2 डेटा पॉइंट मैं आपको बाद में याद करने के लिए बोलूंगा. ठीक है, ये डेटा पॉइंट्स याद करने के लिए आपको बाद में काम आएगा. एक तो ये वाला डेटा पॉइंट जो मैंने अभी येलो हाईलाइट करा है, एंड एक ये वाला डेटा पॉइंट. ठीक है, ये अभी तो जरूरत नहीं है. आई थिंक 5th या 6th लेक्चर में आप आओगे तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी. ठीक है, दैट इज वेयर देन यू विल बी एबल टू सी. ठीक है, सो दिस इज समथिंग आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आज के आज याद हो जाएगा, बट धीरे धीरे विद टाइम एटलीस्ट दीज आर द वंस जिनका आपको रिलेटिव ऑर्डर ध्यान रहेगा, तो इट विल बी यूजफुल फॉर यू. ठीक है, नाउ आई विल बी शेयरिंग दिस PDF, तो उसमें ये आपके पास आ जाएगा, आपकी बुकलेट में भी है ऑलरेडी, सो डोंट वरी अबाउट इट मच. सो दिस वाज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. ठीक है, द क्विक एक्सप्लेनेशन ओवर इट what it is. And now let me take your doubts. So you have multiple doubts in this section. Okay, so can you send electrochemical series order? तो हाँ, वो मैंने आपके साथ में शेयर कर ही दिया है. Then what is oxidation and reduction potential? Because one half oxidation is taking place and another half reduction is taking place. So we cannot really find half cell potential. समझा नहीं मैं हर्षित, आपने पूछना क्या चाहा, मतलब I really did not understand. So let me do one thing. Let me unmute you first. Let me find out कहाँ पर हो तुम. हर्षित हर्षित हर्षित, अरे ये रहा. हाँ, अरे यार, हाँ हर्षित, तुम्हारा डाउट समझ में नहीं आया. आई हैव अनम्यूटेड यू, सो यू कैन स्पीक एंड लेट मी नो योर डाउट. सर हम लोग E0 सेल E ऑक्सीडेशन प्लस E रिडक्शन करके निकालते हैं ना.
तो उसमें आपने बोला था कि हम लोग हाफ सेल का पोटेंशियल निकाल नहीं सकते, और हाफ सेल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ही हो रहा है, मतलब एक हाफ में ऑक्सीडेशन हो हाँ। रहा है। तो फिर हमने ई ऑक्सीडेशन निकाला कैसे, क्योंकि वो तो निकाल नहीं सकते हम लोग। नहीं, सो हमने ई सेल निकाला ना। सी देखो यहाँ पे वापस आओ, हमने ई सेल निकाला, ठीक है। पर सर वो ई सेल ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन है ना, तो मतलब दोनों का हमको नहीं नहीं, पोटेंशियल। ई सेल एक्सपेरिमेंटली निकाला, ठीक है। ओके ओके जो ये ओके। ई सेल था, हाँ एक मिनट यहाँ पे नोटिस करना, ये जो ई सेल है, दिस इज समथिंग जो मैंने ये डायग्राम बनाया था ना यहाँ पर। हाँ, इस पूरे सेल का मैंने मेजरमेंट लिया, एक वोल्टमीटर लगाया और इस सेल का मैंने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करा, क्योंकि इसके थ्रू इसमें क्या है, पूरा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, तो वो मैंने एक्सपेरिमेंटली मेजर करा। दिस इज समथिंग विच आई गेट एक्सपेरिमेंटली। अब फिर जो राइट हैंड साइड पे टर्म्स हैं उनमें से एक, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो उसको 0 असाइन कर दिया और फिर दूसरे का वैल्यू निकाल लिया। ओके, थैंक यू। समझ में आया? यस सर, यस सर। ओके, ठीक है। सो then there was this another doubt, let me come to that. So how we come to know the metals above or below hydrogen, ये अभी एक डाउट रहेगा, ठीक है। ये एक डाउट पूछा है साई ने, that how do we come to know the metals above or below hydrogen liberate hydrogen gas। तो अभी ये मैं जब क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा एफबी और एफबीएस के, तो उसके साथ एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। वेट करो। अरे एनसीईआरटी का पीडीएफ ऑनलाइन मिल जाएगा भाई आपको, एक बार गूगल करो, यू विल गेट, ठीक है। एंड ठीक है वरुण, आपका डाउट थोड़ा आगे का है, वी विल डिस्कस जब आगे थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट आएगा तो मैं बताता हूँ। रिएक्टिविटी सीरीज इज सिमिलर, राइट, यही रिएक्टिविटी सीरीज यही है भाई हर्षित। Yeah, I do recommend you read NCERT, definitely. ठीक है, all right. So electrochemical series वाला पार्ट आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया है। नाउ ये थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट है, उसमें जो एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं क्विकली ले लेता हूँ, एड्रेस कर लेता हूँ, दैट ऑल्सो विल डिस्कस एंड क्लोज। सो ऑब्जर्व दिस, जो थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल वाला पार्ट है, इन दिस पार्ट एक तो अरे सॉरी, एक तो इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है दैट डेल्टा जी नॉट is equal to minus NF E naught, ठीक है। This is an important relationship between the available energy of a cell and the electrical work done. Now अब इसमें एक क्वेश्चन आता है इस n के ऊपर, ठीक है, दैट ये n आपको कैसा लिखना है, तो इसमें ध्यान से नोट करना, ठीक है, बहुत ध्यान से नोट करना। दिस इज अ डाउट दैट कम्स अ लॉट ऑफ टाइम्स। फॉर हाफ सेल रिएक्शन, अगर कोई हाफ सेल का एनालिसिस कर रहा है और उसमें n आपको लिखना है, तो इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिटन इन द रिएक्शन, ठीक है। मान लो अगर ये रिएक्शन लिखा हुआ है H2 गैस इज गिविंग 2H plus aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन, तो n का वैल्यू 2 यूज करना है। अगर रिएक्शन ऐसा लिखा हुआ है half of H2 gas is giving H plus aqueous plus electron, तो n का वैल्यू 1 यूज करना है, ठीक है। नाउ आप नोटिस करोगे इससे क्या हो जाएगा, E का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है, जो सेल का पोटेंशियल है वो चेंज नहीं होगा,
जो डेल्टा जी है, ठीक है, अगर आप किसी रिएक्शन को आप मान लो पहले वाला रिएक्शन देख रहे हो, तो पहले वाले रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट मान लो x है, तो आप इसके लिखोगे x इज इक्वल टू -2f ई नॉट। ठीक है, अब दूसरा वाला जो रिएक्शन है उसके लिए डेल्टा जी क्या हो जाएगा, x/2। ठीक है, क्योंकि आपने हाफ से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया। अब n का वैल्यू रहेगा यहाँ पे -1 f ई नॉट। तो आप नोटिस कर रहे हो कि ई नॉट का वैल्यू सेम ही आएगा दोनों केस में। सो ई नॉट इज एक्चुअली, इसका जो कंक्लूजन है वो ये है दैट ई नॉट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ई नॉट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इट डज नॉट change how you write the reaction, whereas delta G naught is extensive property. This changes with the written form of reaction. ठीक है, अच्छा, तो ये हाफ सेल रिएक्शन का तो आपको समझ में आया n कैसे लिखना है। अब नोटिस करना फॉर फुल सेल रिएक्शन, ठीक है, n would be number of electrons cancelled out while combining half reactions। ठीक है, जब आप हाफ रिएक्शंस को कंबाइन करते हो, जितने इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट कर रहे हो वो आपका एन रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल नोटिस करना, कोई सेल है जिसमें जिंक एनोड है और सिल्वर कैथोड है। सो आप लिखोगे एनोड पर जिंक गोज टू जिंक 2+ 2 इलेक्ट्रॉन, एंड कैथोड पर आप लिखोगे Ag plus aqueous plus electron gives Ag solid। ठीक है, अब इन दोनों का कंबाइंड सेल रिएक्शन आप कैसे लिख सकते हो? ठीक है, यू कैन राइट द सेल रिएक्शन आइदर इन दिस मैनर, saying that zinc solid plus 2 Ag plus aqueous gave 2 Ag solid plus Zn2 plus aqueous। तो इस केस में n आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट करे। और you could have written the reaction in this manner, half zinc solid plus Ag plus aqueous is giving Ag solid plus Zn aqueous। तो इस केस में n आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, सो ये पार्ट समझ में आया आप लोगों को? अब इसमें डाउट देख लेते हैं आपके क्या क्या है। सो लेट मी सी एक एक करके। सो सबसे पहले there is a doubt that is that it without balance, is it that with it without balancing the equation? नहीं, मुझे तुम्हारा डाउट समझ में नहीं आया। सो ओके, लेट मी अनम्यूट यू क्षितिज, एंड फिर तुम अपना डाउट पूछो एक बार, तुमने ढंग से लिखा नहीं है। ओके, सो आई एम अनम्यूटिंग यू, पूछो। कहाँ गया क्षितिज? ओके, then there is this doubt from Dhruvanshu. Sir, then in half reactions, delta G at cathode and delta G at anode will be different. मतलब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे ना। अगर एक पर्टिकुलर आप हाफ सेल ले रहे हो, अब उसके कैथोड और एनोड के रिएक्शन आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर,
तो डेल्टा जी नॉट का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो क्षितिज हमेशा बैलेंसिंग करने के बाद में ही एन लेते हैं, राइट। सो यू हैव, सो यहां पर नोटिस करना ये दोनों हाफ सेल रिएक्शंस हैं, एक जिंक की साइड वाला और एक सिल्वर की साइड वाला। अब जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो आइदर आई हैव ऑप्शन ऑफ मल्टीप्लाइंग दिस बाय 2 एंड देन एडिंग, ताकि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाए। So if I multiply this by 2 and then add, electrons cancel out, and as a result 2 electrons got cancelled out, so I write n is equal to 2 for this reaction. Or I have other option ki instead of multiplying it by 2, I multiply the first reaction by half and then add. So if I add the 2, then एक electron cancel out हो रहा है, so इस reaction के लिए then I will write n as 1. ठीक है, नहीं नहीं ऐसे 2 4 नहीं कैंसिल हो रहे बाबा, 2 दिस साइड एंड 2 दैट साइड, सो इफेक्टिवली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग कैंसल्ड, 2 ऑन आइदर साइड। ऑलराइट, सो ओके, दीज वर द कॉन्सेप्चुअल डाउट्स। इसके अलावा अब आपको कुछ और कॉन्सेप्चुअल डाउट पूछना है मुझसे, सो लेट मी नो। ओके, सो देयर इज, देयर इज अ डाउट, पहले तो अपना नाम सही से लिखो, अपना नाम जब से ढंग से नहीं लिखोगे तो आई विल नॉट एड्रेस योर डाउट्स। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सिट इन द क्लास, write your proper names if you want to get your doubts addressed. Okay, so ठीक है विजेता, आपका डाउट मैं थोड़ी सी देर में लेता हूं, जब हम लोग एफबीओ का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वहां पर आपका ये डाउट अभी आ जाएगा। ठीक है, yes Arnab, it is a desorption phenomena that happens when gas ion electrode की surface पर reaction होता है। ठीक है, all right, so now let me start with FBO के doubts. So all right, okay, so there is one more question that is, in a question if reaction is not given and the question wants the reaction to be assumed, then which end to be considered? तो गलत है ना, वो तो क्वेश्चन में देना चाहिए था रिएक्शन। ऐसे हम कोई अंतर्यामी थोड़ी ना है कि क्वेश्चन सेटर का दिमाग रीड कर लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन में नहीं लिखा आ रहा है तो वो क्वेश्चन का फ्लो है। All right, so let's start our discussion with the FBO. In FBO आपने पहला क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 7। All right, so 7 में, okay, 7 में सी ए ऑप्शन गलत है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लैटिनम नहीं होता। सी ऑप्शन भी गलत है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड पता नहीं कहाँ से आ गया। डी ऑप्शन भी गलत है, इसमें ऑक्सीजन गैस पता नहीं कहाँ से आ गया। बी ऑप्शन इज सही है, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में यू हैव H2 and H plus ion, and H plus ion can also be written as H3O plus ions. So this is something which I had spoken about in ionic equilibrium as well, that H plus and H3O3 plus are the same thing. So they can be used आपस में, that's not really a concern. H plus exists as H3O plus in aqueous solution. Then 9th question. Right. So, okay, let me take 2 minutes to explain this calomel electrode as well. Okay, calomel electrode, this is also a reference electrode. This is actually a
reference electrode from a practical point of view, because theoretically जो हमने reference electrode माना है, that is standard hydrogen electrode, that is something which it is a good reference point from the theory point of view, but practically इसको handle करना मुश्किल हो जाता है because of its setup. अभी hydrogen gas को use करना, and because of its combustible nature it becomes a little inconvenient. So इसीलिए calomel electrode को भी एक और reference electrode बनाया गया है from the point of view of primarily convenience. This is something which can be easily transported from one place to another place and is quite steady in terms of giving its electrode potential. So इसके लिए यहाँ पर आप एक बार इसके ऊपर भी construction और reaction समझ लेना कैसा है. So calomel electrode is a metal insoluble salt electrode. ठीक है, this is something जिसमें मेटल रहता है Hg और उसका insoluble salt रहता है Hg2Cl2. ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा कैच है that Hg under room temperature conditions is actually liquid. तो इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा फ्रॉम द रेगुलर मेटल insoluble salt electrodes. यहाँ पे नोटिस करना. So we will have a provision of Hg in liquid phase. ठीक है, यहाँ पर ये Hg रहेगा in the electrode. Here you will have a platinum wire जिसका काम रहेगा इलेक्ट्रॉन्स का अंदर बाहर करना. Then उसके साथ यहाँ पर Hg and उसी के salt का Hg2Cl2 का paste present रहेगा, and इसके ऊपर you will have the solution of anion. ठीक है, Cl minus anion है salt का, तो इसके anion का solution present रहेगा. तो ये इसका construction रहेगा. अब अगर मैं इसका reaction लिखना चाहूँगा तो let's say अगर ये anode की तरह behave कर रहा है तो इसका reaction कैसा रहेगा? Hg will undergo oxidation to form Hg2Cl2. ठीक है, ये आप नोटिस कर रहे हो 0 से +1 स्टेट में जा रहा है, एंड अगर कैथोड की तरह एक्ट करेगा तो ये इसके ऑपोजिट मैनर में रिएक्शन शो करेगा. Hg2Cl2 solid plus 2 electrons is going to give me 2 Hg liquid plus 2 Cl minus aqueous. Right, so this is something which you should be aware about. आप अपने नोट्स में इसको ऐड कर लो, रेफरेंस इलेक्ट्रोड वाले सेक्शन में ही इसके बारे में पता होना चाहिए. इसका SRP वैल्यू भी पता होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल है Hg2Cl2 Hg. This is roughly around 0.24 volts. This is something which you should also remember. Okay, then there is 10th question, which is doubt. अब इसमें क्या करना है, मतलब कहाँ अटक गए? Zn2 plus aqueous plus 2 electron is giving Zn solid होगा ना, मतलब एक एक चीज इंपॉर्टेंट है. Zn +2 से 0 जाना चाहिए, एंड उसके फेजेस भी नोटिस करना, ये aqueous ये solid, ये सब मैटर करेगा. ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा. आई विल सेंड द PDF अक्रॉस, तो उसका पूरा PDF आप अपने पास रखो. उसके बाद यू कैन टेक ऑल द स्क्रीनशॉट एंड ऑल दैट यू वांट. देन 12th क्वेश्चन में आप ऑब्जर्व करना. राइट, सो 12th क्वेश्चन इज समथिंग जो आप नोटिस करना. विजेता आपके क्वेश्चन को भी आंसर करेगा. ठीक है, इसमें द पॉइंट इज more active metal is the one which has lesser SRP. ठीक है, and this is something which I'll always talk with sign. ठीक है, मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात करूंगा मैं. So more active metal displaces less active metal मतलब जिसका higher SRP रहेगा. Again with sign.
ठीक है. So this is something which is something that will come time and again. एक second. Okay. So more active metal, lesser SRP, and less active metal, higher SRP. तो अब आपके क्वेश्चन में आप नोटिस करना, आपके सामने एग्जांपल्स हैं कॉपर, लेड, सिल्वर, जिंक एंड कैडमियम के. ठीक है. So if you will notice the electrochemical series, ठीक है, let me come back to the electrochemical series and help you read it. ठीक है. So ये आपके सामने electrochemical series है. I hope आपको दिख रहा है. ठीक है. अब इसमें आप नोटिस करो एक एक करके. सबसे पहले कॉपर को लोकेट करने की कोशिश करते हैं. So this is where copper is. Let me use another ink. Okay. So this is where copper is. अब बाकी ऑप्शंस देखो यहाँ पर. पीबी, सो पीबी इसके नीचे है, ये पीबी रहा, यानी कि पीबी इज मोर एक्टिव. एजी इसके ऊपर है. ठीक है, ये रहा एजी. सो एजी इज लेस एक्टिव. देन नेक्स्ट क्या है? जिंक. जिंक उसके भी नीचे है, तो ये भी लेस एक्टिव है. ठीक है. एंड कैडमियम. कैडमियम खैर इसमें नहीं है, बट कैडमियम यहीं कहीं पे होता. ठीक है, कैडमियम भी इसी रीजन में कहीं ना कहीं पे होता. सो अब सिल्वर, दिस इज लेस एक्टिव. सो कॉपर कैन डिस्प्लेस सिल्वर के आयंस. ये समझ में आया? तो कॉपर जब सिल्वर के आयंस डिस्प्लेस करेगा तो खुद कॉपर 2+ बना देगा और से सोल्यूशन आपका ब्लू हो जाएगा. ये समझ में आया हाउ टू गो अबाउट इट? ठीक है. विजेता, आपका जो डाउट था अभी क्लियर हो गया? ओके. नाउ नेक्स्ट 13th and 14th क्वेश्चन है. सो थर्टींथ में भी आप नोटिस करना. ठीक है, वापस से सेम लॉजिक लगेगा. मोर एक्टिव मेटल. मोर एक्टिव मेटल मतलब जिनका लेसर एसआरपी है. ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ में अगर मैं बात करूं, मतलब नेगेटिव साइन क्या, विद साइन बात करूंगा मैं. सो मोर एक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस H+ फ्रॉम एसिड. ठीक है. अभी यहाँ पर H+ का SRP कितना रहता है? आपने नोटिस किया था 0 है. तो उससे कम SRP किनका होगा? बेसिकली जिनका SRP नेगेटिव रहेगा वो इससे कम हो गया ना SRP के टर्म्स में, तो दे आर मोर एक्टिव. सो नाउ अगेन इफ यू लुक एट द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लेट्स रेफर इट अगेन. तो इसमें जिंक विल डिस्प्लेस H+ आयन. ठीक है, ये जिंक डिस्प्लेस करेगा. यहाँ पे नोटिस करना, ये आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है. ये जिंक 2+ नहीं करेगा. ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, डोंट राइट जिंक 2+. ए ऑप्शन जो है वो गलत है. इट इज जिंक दैट विल डिस्प्लेस. अच्छा, बी ऑप्शन में आप देखोगे Ag और जिंक 2+ के बीच में. तो Ag और जिंक 2+ के बीच में Ag तो यहाँ ऊपर है और जिंक यहाँ पर है, विच इज मोर एक्टिव. जिंक इज मोर एक्टिव. तो जिंक सिल्वर के आयन को रिप्लेस करेगा, ना कि सिल्वर जिंक के आयन को. दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट. सिमिलरली अगर आप Ag और H+ के बीच में देखोगे तो Ag तो ऊपर चला गया ना, तो Ag तो लेस एक्टिव हो गया. तो Ag will not be able to displace H+ from the acid solutions. ये समझ में आया? ओके,
कमिंग बैक, अब आपको 14th क्वेश्चन, ओके 14th क्वेश्चन यहाँ पे समझना। 14th क्वेश्चन में अच्छा एक गड़बड़ है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। हम लोग एनसीईआरटी का टेबल देखेंगे तो एनसीईआरटी का टेबल जो मैंने आपको दिखाया है उसमें बिलो हाइड्रोजन नेगेटिव एसआरपीज है एंड अबव हाइड्रोजन पॉजिटिव एसआरपीज है। सो द थिंग इज दैट समटाइम्स सम बुक्स में उल्टे तरीके से टेबल लिखा हुआ है। सो नेगेटिव वाले एसआरपीज ऊपर लिखे हैं, पॉजिटिव वाले एसआरपी नीचे लिखे हुए हैं, तो वो क्या है बुक टू बुक चेंज होता रहता है। अगर कभी भी ऐसा अबव बिलो का क्वेश्चन आ रहा है, आई वुड रेकमेंड कि आप एनसीईआरटी फॉलो करो। ठीक है, यू डोंट बॉदर अबाउट द अदर टेक्स्ट बुक्स, जस्ट फॉलो द एनसीईआरटी एंड उसमें कैसा अबव और बिलो लिखा हुआ है तो उसके हिसाब से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, देन 15th क्वेश्चन में भी हाँ डेफिनेटली देयर इज दिस एम्बिग्विटी जिसको वी मस्ट बी एबल टू टैकल, क्योंकि 15th क्वेश्चन में आप नोटिस करना 15th क्वेश्चन में एक्चुअली केमिकल एक्टिविटी के बारे में बात करा जा रहा है। नाउ केमिकल एक्टिविटी इज समथिंग विच अभी डिपेंड करता है ना कि इट वांट्स टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट और एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सो इसमें लेसर एसआरपी इज मोर एक्टिव एंड इसमें हायर एसआरपी इज मोर एक्टिव। ठीक है, these are primarily metals and these are primarily non metals। ठीक है, प्राइमरीली बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो ए है वो ज्यादा एक्टिव होना चाहिए एंड नॉन मेटल्स में बी ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ओके माय बैड 14th क्वेश्चन में ओके ओके ठीक है 14th क्वेश्चन में आपको ये पूछा हुआ है कि विच इज द इनकरेक्ट, या ठीक है वो कंफ्यूजन हो गया। सो डी आई शुड राइट प्रॉपरली, डी स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नहीं नहीं एक मिनट, डी तो करेक्ट है ना, क्या कंफ्यूजन कर रही हो यार तुम। सी सी स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, आई होप दैट क्लियर्स द डाउट। हाँ now let's move to the 17th and 18th question। 17th question में stronger oxidizing agent, तो इसका क्या हो जाएगा ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब अभी ये मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझाया तो उससे आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, एंड दिस इज अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइज इफ यू वांट टू गेट बेटर एट अंडरस्टैंडिंग दिस। ठीक है, एक बार में नहीं होता है कि आप एक बार पढ़ लोगे और आपको उसमें सब क्लैरिटी आ जाएगी। You have to do a discussion and clear out these doubts with each other। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल एंड ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का पार्ट ऐसा है कि इसमें छोटे छोटे डाउट्स बार बार आते रहेंगे। आपको अगर इस पोजीशन में पहुंचना है दैट यू आर एबल टू आंसर एवरीथिंग वन गो में, ठीक है, यू आर ऑलवेज राइट इन द फर्स्ट आंसर इटसेल्फ, तो आपको ये बैक एंड फोर्थ डिस्कशन करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ में टू एक्सप्लेन ईच अदर दिस एंटायर थिंग। ठीक है, 18th में वापस से strip of copper is less active than Fe। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, there will be no reaction, copper will not be able to displace iron, it is less active। 19th वाले में
which of the following metals can deposit copper from copper sulfates? So metals more active than copper can do this. ठीक है, so what does this means? That lesser SRP than copper, ये हमारा आंसर होगा। तो अब आप वापस से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख लो एंड उसमें रेफर करो क्या क्या बोला गया है। मर्करी, आयरन, गोल्ड, प्लैटिनम, तो ये आप नोटिस करोगे यहाँ पर गोल्ड तो यहाँ पर है, ठीक है, लेट मी यूज दिस, गोल्ड यहाँ पर है, देन प्लैटिनम तो यहाँ पे दिया भी नहीं है, बट प्लैटिनम ऊपर ही होता है और कॉपर के ऊपर ही है ये, एंड मर्करी भी कॉपर के ऊपर ही है। सो इट इज ओनली आयरन जो कि कॉपर के नीचे है, विच इज मोर एक्टिव। तो कॉपर के आयंस विल बी डिस्प्लेस्ड बाय आयरन, ये हमारा आंसर बनेगा। देन 20th एंड 21st, सो 20th का इसके जैसा तो जस्ट अभी अपन ने करा, ठीक है, 20th इज समथिंग दैट वी जस्ट डिड, ठीक है, ये 13th क्वेश्चन में मैंने जैसे एक्सप्लेन किया था उसके बेसिस पे आ जाएगा। देन 21, ये सी ऑप्शन इज समथिंग, ये अभी आपको नहीं पता पड़ेगा, मतलब ये कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या हो जाएगा, कॉपर गोज टू कॉपर 2+, ये एक्चुअली ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। सो डोंट वरी अबाउट दिस कॉम्प्लेक्स पार्ट राइट नाउ। अभी आपको थोड़ा सा अजीब सा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का चैप्टर पढ़ा नहीं है, आप पढ़ोगे तो इट विल बी समथिंग क्वाइट क्लियर टू यू। देन 22 आ जाएगा based on the similar explanation। 23 is also something अब आपको समझ में आ जाएगा। 24th भी आ जाएगा, 25th, ठीक है, 25th is something which I can explain। 25th में A+ इलेक्ट्रॉन गिविंग A-, ये लार्ज नेगेटिव SRP, तो ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था ना विद दिस एग्जांपल, लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन, लिथियम प्लस गिविंग प्लस लिथियम इलेक्ट्रॉन इज गिविंग Li, राइट, लार्ज नेगेटिव SRP। तो हमने इसके बारे में कमेंट डाला था ना, दैट दिस थिंग इट रेडिली ऑक्सीडाइजेस, ठीक है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। this is a weak oxidizing agent, this does not want to readily undergo reduction, ये रिएक्शन प्राइमरीली बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। 26th क्वेश्चन, 26th क्वेश्चन में एक्चुअली सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन कई बार के लिए स्टूडेंट्स को लगता है कि व्हाई इज इट नॉट द करेक्ट आंसर, Cu2+ gets reduced, ठीक है, it's not copper that gets reduced, it is Cu2+ that gets reduced। तो उसके बेसिस पे आप 26th क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, ठीक है। देन 29th, तो 29th में आप अब ये चीज समझो ना, वापस से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखो, यहाँ पर जो नीचे वाला एलिमेंट रहेगा, ठीक है, जो नीचे वाला एलिमेंट रहेगा ये एनोड की तरह रहेगा और ऊपर वाला एलिमेंट कैथोड की तरह बिहेव करेगा। तो अब आप जब डेटा देखोगे क्वेश्चन का तो उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड पॉजिटिव नेगेटिव इसका आइडिया आप लोगों को पहले से ही है, गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है, तो उसके बेसिस पर आप इस चीज को आंसर कर सकते हो।
ठीक है, एनोड इज नेगेटिव टर्मिनल, एनोड इज नॉट पॉजिटिव टर्मिनल। इन गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये उल्टा हो जाएगा। सो तुमको जो रटा हुआ है ना क्षितिज, वो बचपन की नॉलेज है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो अभी। नाउ 30th क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन, ओके 30th क्वेश्चन मैं एक बार करके बता देता हूँ। 30th इज अ डिसेंट क्वेश्चन। 30th में आप यहाँ पे नोटिस करो 2Fe solid plus O2 gas plus 2H2O liquid, ठीक है, दिस इज गिविंग 2Fe2 plus plus 4OH minus aqueous, ठीक है। So if you will notice, iron is undergoing oxidation and oxygen is undergoing reduction. तो क्या एनोड और क्या कैथोड है वो आपको पता पड़ गया। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है एंड कैथोड पर रिडक्शन होता है। बस अब ये पता पड़ गया, तो उसके बाद ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, SrP कैथोड माइनस SrP एनोड। अब आपको SrP का ही डेटा दिया हुआ है तो उसको पुट कर दो। ये आपको दिया हुआ है, ये 0.4 है और ये दिया हुआ है -0.44 है। तो आप जब लिखोगे तो ये आपका 0.84 वोल्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देन 31st क्वेश्चन, 31st क्वेश्चन में थोड़ा सा एक ट्रिक है। ट्रिक इज यू आर गिवन SOP डेटा, ठीक है। मोस्टली तो क्वेश्चन में SRP मिलता है, बट इस केस में SOP डाल दिया। तो अब आप ई नॉट सेल SRP कैथोड माइनस SRP एनोड की जगह लिख सकते हो माइनस ऑफ SOP कैथोड एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा SOP एनोड, ये भी लिख सकते हो। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। देन 32 में वापस से नोटिस करो ना, ई नॉट सेल इज SRP कैथोड माइनस SRP एनोड। अच्छा, कुछ डाउट है क्या? एक मिनट, लेट मी सी। हाँ, वो गलत लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो रिडक्शन पोटेंशियल का, बट वो इक्वेशन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की है और डेटा भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है दैट गिवन रिडक्शन पोटेंशियल डेटा, वो क्वेश्चन की गड़बड़ है, ठीक है। एंड 32 में अब आप नोटिस करना, आपका ये फॉर्मूला है, तो आपको अगर इसकी मैक्स वैल्यू चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, ये आपका मोर एंड मोर पॉजिटिव रहे एंड ये आपका मोर एंड मोर नेगेटिव रहे। तो अब आप कॉम्बिनेशन चूज कर लो फ्रॉम द गिवन SRPs, ताकि आपका ई सेल मैक्सिमम आ जाएगा। ओके, तो one question that is being asked is how do we know whether the data is given SRP or SOP, ठीक है। How do we know whether the data given is SRP और SOP, ठीक है। अब इस केस में नोटिस करना, अगर आपके सामने ऐसा लिखा है ई नॉट Fe2 प्लस से Fe जा रहा है, तो ये क्या हो गया SRP, क्योंकि आप ये नोटिस करो ना, +2 स्टेट से 0 स्टेट पे जा रहा है, ठीक है। या फिर इसका रिएक्शन आपके सामने ऐसा लिखा होगा Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग Fe, ठीक है। तो ये SRP हो गया। अगर ऐसा लिखा हुआ है ई नॉट Fe2 प्लस ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या दिख रहा है यहाँ पर 0 से +2 जा रहा है, तो मतलब ये किसका डेटा हो गया SOP का। या फिर इसका रिएक्शन नोटिस करो, रिएक्शन कैसा रहेगा, Fe solid is going to give you Fe2 plus aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया?
All right. Then क्वेश्चन नंबर 33 तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. 33 में वापस से आपने आई थिंक बस कैथोड एनोड सही से आइडेंटिफाई करना है. Sn solid plus 2H plus aqueous is giving Sn2 plus aqueous plus H2 gas. So as you can see 0 से +2 जा रहा है and ये +2 से 0 आ रहा है. So this is oxidation. That means this is anode. And H plus से H2 जा रहा है तो ये रिडक्शन हो रहा है. So this is cathode. Now नोटिस करो अब आपको ई सेल लिखना आना चाहिए. ई नॉट सेल क्या हो जाएगा? SRP कैथोड माइनस SRP एनोड. So it will be 0 minus 0.14. ये 0.14 वोल्ट आएगा. और इस ई नॉट सेल को आप क्या ले सकते हो? 0.059 बाय एन का वैल्यू इधर 2 है इंटू लॉग के. एन का वैल्यू 2 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो रहे होंगे जब ये रिएक्शंस ऐड करे गए थे. ठीक है, तो बेसिस दिस यू विल बी एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ के. ठीक है, सो ठीक है, आज का डिस्कशन यहीं पे क्लोज करते हैं. हमारे पास अभी एक्स्ट्रा टाइम नहीं है तो हम लोग FBS का तो नहीं ले पाएंगे. विल कीप द FBS फॉर द नेक्स्ट क्लास. एंड एडिशनली आपको क्या और एक्स्ट्रा होमवर्क करना है वो मैं आप लोगों के साथ ग्रुप पे शेयर कर दूंगा. ठीक है, आई विल अपलोड दीज PDFs एज वेल एज आज की रिकॉर्डिंग का लिंक. तो वो आप देख लेना एंड मैं साथ में फिर आपको ये भी बता दूंगा कि नेक्स्ट क्लास के लिए क्या क्या करना है. ठीक है, ऑल राइट. ठीक है, थैंक यू गाइज. आई विल क्लोज द क्लास नाउ.